गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता कि हमने एक सीरीज चालू की है 4th स्टैंडर्ड के ईवीएस बुक का शिवा छत्रपति जी के बारे में स्टोरी जान रहे हैं, उनके शिवाजी का पूरा बचपन से लेके उनका एंड तक का स्टोरी। और अभी तक हमने 6 चैप्टर तक पढ़ा है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ओथ ऑफ स्वराज, बरोबर, स्वराज की शपथ, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं 7वां चैप्टर। विल बी डूइंग 7th चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्वराज फर्स्ट क्वेस्ट। का मतलब क्या है? स्वराज प्रथम विजय, ठीक है। So we'll be starting this chapter. I hope you guys are liking this video. If yes, then please do not forget to subscribe, share, and also comment if you think anything is going wrong, or if you think any other series we need to start. ठीक है? So let's start. It is no doubt true that Shivaji and his comrades took the oath of Swaraj in a temple of Raireshwar, but it was a very difficult task. In those days, Maharashtra was governed by 4 different powers: the Mughal Emperor of Delhi, Sultan Adil Shah of Bijapur, the Portuguese of Goa, and Siddhi of Janjira. They were powerful opponents, firm in their authority. No one would dare utter a word against them. Under these difficult conditions, Shivaji had taken the oath of Swaraj. There was no comparison between the vast forces of the enemy and a handful of Shivaji's Maulas. But Shivaji's mind was made up and his firm resolve was his greatest source of strength. चलो अब हिंदी में जानने का कोशिश करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवाजी और उनके साथियों ने रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज की शपथ ली थी, लेकिन यह बहुत कठिन काम था। उन दिनों महाराष्ट्र पर 4 अलग अलग ताकतों का शासन था। दिल्ली के मुगल बादशाह, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा के सिद्दी। वे शक्तिशाली विरोधी थे, अपनी निष्ठुरता पर अड़े हुए थे। कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इन कठिन परिस्थितियों में शिवाजी ने स्वराज की शपथ ली थी। दुश्मन की विशाल सेना और शिवाजी के मुट्ठी भर मावलों के बीच कोई तुलना नहीं थी, लेकिन शिवाजी ने मन बना लिया था और उनका दृढ़ संकल्प ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट तोराना फोर्ट। शिवाजी कंट्रोल्ड द जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकन एंड इंदापुर। बिलो यू कैन सी अ फोर्ट तोराना। इट्स ऑल्सो कॉल्ड झुंझार माची, राइट। आगे बढ़ते हैं। All the forts in the Jagir were, however, in the charge of officers from the court of Bijapur. He who controlled the forts also controlled the surrounding territory, and therefore all talk of Swaraj without the control of forts was meaningless. A hill fort gave strategic support to the ruler, and Shivaji decided to capture one at a suitable time. For this purpose, he had selected the fort of Torana. It stands to the southwest of Pune in the Kannad Valley. It was a renowned fort, well suited for defense. There were 2 strong machis on the way to the fort. A machi is a fortification of a natural plateau formed on the slope of a hill. One of these machis was the Junjar Machi and the other the Budla Machi. Junjar Machi, like its name, could offer powerful defense against the enemy. The only access to the fort was across the Junjar Machi. It is a very difficult passage with high hills on one side and deep valleys on the other. A careless person may easily lose his balance and end his life in the deep valley. Torana was considered one of the strong forts of Maharashtra. In the fort there is a temple of goddess Toranjai. That is why the fort is called Torana. Strangely enough, this powerful fort was neglected by Adil Shah. There were neither enough troops for its defense nor enough ammunition. Shivaji knew this, and this was exactly what he wanted. He decided to capture the fort and thus lay the foundation of Hindavi Swaraj. अब हम बात करेंगे तोरना किला। शिवाजी ने पुणे, सुपे, चाकन और इंदपुर की जागीर पर नियंत्रण किया। हालांकि जागीर के सभी किले बीजापुर के दरबार के अधिकारियों के प्रभार में थे,
जो किलों का नियंत्रण करते थे वह आसपास के क्षेत्र को भी नियंत्रित करता था और इसलिए किलों के नियंत्रण के बिना स्वराज की सभी बातें निरर्थक थी। एक पहाड़ी किला शासक को रणनीतिक समर्थन देता था और शिवाजी ने सही समय पर कब्जा करने का फैसला किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने तोरण का किला चुना था। यह कन्नाड़ घाटी में पुणे के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध किला था जो रक्षा के लिए उपयुक्त था। किले के रास्ते में 2 मजबूत माचिस थे। एक माची एक पहाड़ी की ढलान पर बने प्राकृतिक पठार का किला है। इस माचिस में से एक झुंझार माची और दूसरी बुदला माची थी। दुश्मन के खिलाफ किले तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता झुंझार माची के पार था। यह एक बहुत ही कठिन मार्ग है जिसके एक तरफ ऊंची पहाड़ियां और दूसरी तरफ गहरी घाटियां है। एक लापरवाह व्यक्ति आसानी से अपना संतुलन खो सकता है और गहरी घाटी में अपना जीवन समाप्त कर सकता है। तोरणा को महाराष्ट्र के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता था। किले में देवी तोरणाजाई का मंदिर है, इसलिए किले को तोरणा कहा जाता है। हैरानी की बात है कि इस शक्तिशाली किले की आदिल शाह ने अपेक्षा की थी। इसकी रक्षा के लिए न तो पर्याप्त सैनिक थे और न ही पर्याप्त गोला बारूद। शिवाजी ये जानते थे और ये वही था जो वो चाहते थे। उन्होंने किलों पर कब्जा करने का फैसला किया और इस तरह हिंदवी स्वराज की नींव रखी।